नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे है कि आप अपने घरों में रखें, सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का आप अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर देश भी खतरे में चला जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने घरों में ही रखें। जहां एक तरफ कोरोना की वजह से अब लोग परेशान हैं, तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, बात हो रही है, वहीं कुछ अच्छी खबरें भी है, कुछ सुखद अनुभव करने लायक भी है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी कर ली है। 43,574 करोड़ रुपए में यह हिस्सेदारी ली गई है। इसके साथ ही फेसबुक अब रिलायंस जियो का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है। इस डील पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि हमने 2016 में जियो लॉन्च किया था। भारत का डिजिटल सर्वोदय, भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना और भारत को दुनिया के प्रमुख डिजिटल सोसाइटी में शामिल करने का सपना था। उन्होंने कहा कि रिलायंस को दीर्घकालिक साझेदार और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बदलने के लिए फेसबुक का स्वागत करने का मौका मिला है, जिसका फायदा सभी भारतीयों को मिलेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो और फेसबुक की साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में भी मदद करेगा। My fellow Indians, Namaskar. I trust that all of you are safe and well. I am here to share with you some exciting news today. All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. Over the past few years, Facebook, WhatsApp, and Instagram have become household names in India. WhatsApp, in particular, has entered our people's daily vocabulary in all the 23 official languages of India. WhatsApp is not just a digital application. It has become Aapka or Hum Sabka Pyara Dost, a friend who brings together families, friends, businesses, information seekers, and providers. The combined power of Jio's world-class digital connectivity platform and Facebook's intimate relationship with the Indian people will offer innovative new solutions to each one of you. In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian Kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. At the same time, small Kiranas can grow their businesses and create new employment opportunities using digital technologies. And in the days to come, this winning recipe will be extended to serve other key stakeholders of Indian society. Our Kisans, our small and medium enterprises, our students and teachers, our healthcare providers, and above all, our women and youth who form the foundation of a new India. Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set two ambitious goals in his Digital India mission. Ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially
for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook will help realize these two goals. Finally, I take this opportunity to wish each and every one of you good health and safety in the current extraordinary situation in India and around the world. We are all in this together, and together we will overcome this pandemic. Corona harega, India jeetega. With our collective efforts, India will surely emerge stronger, healthier and better. Thank you and Jai Hind. और चलिए अब प्रदेश में कोरोना का किस तरह का हाल है जरा वो आपको बता देते हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1553 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, 81 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 151 लोग स्वस्थ होकर घर भी पहुंच चुके हैं और वो स्वस्थ हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का वो अब पालन कर रखे हैं और अपने आप को वो क्वारंटीन कर चुके हैं ताकि वो किसी के संपर्क में ना आए और लोग उनसे प्रभावित ना हो, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अलग अलग जिलों का क्या आंकड़ा है? इंदौर में 923 पॉजिटिव केस है, 52 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 71 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। मुरैना में 14 कोरोना पीड़ित हैं, 6 लोगों की मौत हुई है, 14 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ये जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रखे हैं। उज्जैन का जहां पर 36 कोरोना पॉजिटिव केस है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज के 6 स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं भोपाल में 269 कोरोना पीड़ित मरीज हैं, जिनमें 8 की मौत हो गई है, 34 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बात ग्वालियर के करें तो 7 पॉजिटिव केस है, 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस है, दोनों स्वस्थ हो चुके हैं। खरगोन में 41 कोरोना पॉजिटिव हैं, 3 मरीज की मौत हो गई है, 3 स्वस्थ हुए हैं। छिंदवाड़ा में 4 कोरोना पॉजिटिव में से 1 की मौत हो गई है। बड़वानी में 24 केस है, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 25, श्योपुर में 4, रायसेन में 26, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 20, शाजापुर में 6, सागर में 2, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगर मालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1, डिंडौरी में 1, बुरहानपुर में 1 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुका है। इंदौर में कोरोना से जंग के लिए अब बड़ी तैयारी की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा की तर्ज पर अब यहां पर भी आज से काम शुरू किया जाएगा। कोरोना से जंग के लिए इंदौर में अब भीलवाड़ा मॉडल अपनाया जाएगा। नगर निगम की 1000 टीम के साथ अन्य 800 टीम, जिसमें आंगनबाड़ी, शिक्षक और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं, मैदान में उतरेंगी और सर्वे के साथ स्क्रीनिंग का काम करेंगी। स्क्रीनिंग का काम योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए 6 दिन बाद दोबारा स्क्रीनिंग करने की प्लानिंग भी की गई है। पूरे देश भर में एक जो भीलवाड़ा मॉडल जो आजकल काफ़ी चर्चित है, भीलवाड़ा मॉडल और कुछ नहीं है, यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर एक बेसिक स्क्रीनिंग की टीम लगा दी गई थी और उसके द्वारा पूरे भीलवाड़ा का सर्वे उन्होंने करा लिया था। जितने भी संदिग्ध इस प्रकार के पेशेंट्स थे उनको पहले से आइडेंटिफाई करा के उनका अगर आवश्यकता पड़ी तो सैंपल लेके उनको आइसोलेट कर दिया और बहुत जल्दी इस पूरी समस्या पर काबू पा लिया गया। सेम टाइप की चीज़ हम लोग इंदौर में भी दोहरा रहे हैं। नगर निगम की टीम कुछ सवालों के साथ घर घर सर्वे के लिए पहुंचेगी। वे यहाँ सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ ही ये भी पूछेगी कि क्या आप किसी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहे। यदि किसी ने भी हाँ कहा तो तत्काल उसे डॉक्टरों के पास अस्पताल भेज दिया जाएगा। वहीं टीम कैसे सर्वे करेगी, इस बारे में नगर निगम कमिश्नर ने क्या कुछ बताया, सुनिए।
कि जो कचरा गाड़ी का रूट है उसको हम लोगों ने एक यूनिट माना है और उस यूनिट मानकर प्रत्येक कचरा गाड़ी के रूट पर 3 टीम्स की हम लोगों ने प्लानिंग करी है। जितने भी कंटेनमेंट एरिया के तहत हमारा सर्वे हो गया है उसको हम लोगों ने GIS मैप पे मार्क करके छोड़ दिया है। बाकी का जितना भी रूट बचा हुआ है उसके लिए हम लोगों ने अगर 50% रूट बचा हुआ है तो 2 टीमें लगा दी हैं, अगर 30% रूट बचा हुआ है तो 1 टीम लगा दी है। इस तरीके से कचरा गाड़ी के हिसाब से जितने भी घर वो कवर करती है प्रत्येक कचरा गाड़ी, हम लोगों ने पूरे शहर भर को 1800 यूनिट्स पे बांटा है। नगर निगम द्वारा शुरू की गई आसान राशन खरीदी योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन होने पर नगर निगम ने थोड़ी राहत की सांस ली है। केंद्र से आए दल ने भी निःशुल्क राशन वितरण केंद्र का अवलोकन किया है और कहा है कि इंदौर शहर देश का ऐसा पहला शहर है जहां फ्री राशन व्यवस्था को इतने वृहद पैमाने पर लागू किया गया है। देखिए, जो हमारी सेंट्रल की टीम आई है उन्होंने और जगहों का दौरा किया, प्लस हमारी जो राशन की जो फ्री राशन की व्यवस्था है उसका भी दौरा किया और जो हमारी पेड राशन वाली व्यवस्था है उसके बारे में भी फीडबैक लिया। दोनों पे उन्होंने बहुत संतुष्टि व्यक्त करी और ख़ासतौर पर जो हम लोग निःशुल्क राशन के पैकेट्स दे रहे हैं उसकी बहुत प्रशंसा करी है और उन्होंने बोला है कि ऐसा शायद देश का पहला सिस्टम है, अकेला सिस्टम है जो इस तरीके के इंदौर में काम कर रहा है। बहरहाल राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में प्रशासन की प्लानिंग कारगर साबित हुई और यही वजह है कि अब कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में भीलवाड़ा मॉडल को आदर्श मानकर इंदौर भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। लॉकडाउन के दौरान राजधानी भोपाल में शराब कचरा गाड़ी में परिवहन की जा रही है और ये मामला जब सामने आया तो फिर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अब रात के अंधेरे की तस्वीर जहां बोरियों में छिपाकर शराब को नगर निगम की कचरा गाड़ी में ले जाया जा रहा था, जिसे बरामद किया गया और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई। राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के कोचिंग स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए मध्य प्रदेश की बसें कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट कैंपस में पहुंच चुकी है। यहां से अब से कुछ देर बाद स्टूडेंट्स की रवानगी शुरू होगी। कोटा से 150 बसें अलग अलग समय पर रवाना होंगी और मध्य प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश के करीब 4000 विद्यार्थी वहां पर थे जो अब अपने घर पहुंचेंगे। तो अपने सफलतम करियर के लिए पढ़ाई करने कोटा गए हुए विद्यार्थी अब वापस अपने घर पहुंचने वाले हैं। कोरोना काल में उन्हें वहां किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रयास जरूर शासन प्रशासन ने किए, लेकिन हॉस्टल्स भी अब पूरी तरह से बंद हैं और हर जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। इस लिहाज से फैसला लिया गया कि इन विद्यार्थियों को वापस अपने अपने प्रदेश भेज दिया जाए और फिर प्रदेशों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू किया। तो अपने विद्यार्थियों को लेने के लिए मध्य प्रदेश की भी बसें रवाना हो चुकी हैं और वहां पहुंचने के बाद अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के लिए निकलेंगी। एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से सुखद खबर हम आपको बता देते हैं। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज रिकवर हो चुका है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एम्स से डिस्चार्ज किया गया। कटघोरा का रहने वाला है रिकवर मरीज। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 10 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही कोरोना वायरस की जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट आज पहुंच रही है। रैपिड टेस्ट किट आने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा सकेगी, जिससे लोगों को कोरोना जांच में सहूलियत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि आईसीएमआर ने मानक का जो बनाया हुआ है उसी मानक के अनुसार ही इस टेस्ट किट का निर्माण हुआ है, जो प्रदेश में सप्लाई हो रही है। किट के आने से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। किट को लेकर कुछ लोग भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भ्रांति फैलाने वालों के तथ्य निराधार हैं।
जो टेंडर निकला था उसमें आईसीएमआर ने जो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर नहीं, जो सप्लायर जिन्होंने उनके शर्तों का पालन नहीं किया था उनसे सामान लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया। और आप देखेंगे इसमें कंपनियां नहीं, ये कॉलम अगर आप निर्माताओं को देखेंगे, इधर 16 नंबर और 17 नंबर पे एक ही सप्लायर है, इधर आप देखेंगे तो वॉन्डफो, चाइना की कंपनी है वॉन्डफो। अगर ब्लैक लिस्ट किया जा रहा होता है या रोका जा रहा होता तो एक कंपनी का नाम एक से ज्यादा जगह नहीं आता। अब ये वॉन्डफो का नाम आप देखें कितनी जगह। आईसीएमआर ने सभी राज्यों से 2 दिन के लिए रैपिड टेस्टिंग रोकने को कह दिया है। रैपिड टेस्टिंग किट की जांच के बाद इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। तब तक पुरानी तकनीक से ही कोरोना की जांच जारी रहेगी। सारे स्टेट्स को यह सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप भी अपने घरों में रखें, सुरक्षित रखें, देश को भी सुरक्षित रखें।